Hello students, today in this lecture I am going to discuss how to calculate the electric field due to the charged circular loop. Okay, we have to calculate the electric field due to the charged circular loop on its axis. The observation point lies on its axis. Okay, so students, for this what we are going to consider, we are going to consider a circular loop, a conducting circular loop of radius r, and since say the charge plus q is uniformly distributed over its circumference. Moreover, the loop will be placed in the yz plane, okay, and since the center of the loop will lie or coincide with the origin of the coordinate frame. The coordinate frame, the system of x-axis, y-axis and z-axis. Now since the positive x-axis, it will be the axis of the charged circular loop and the observation point will lie somewhere on the positive x-axis. Okay sirs? Now I am just sketching the figure on the whiteboard, and sirs, what do you need? You have to sit with your register and pen, copy it out, what I am going to dictate, note it down, make your fresh notes and do the learning. Okay? Okay. Now let us suppose say first of all let us say the circular loop. It is the origin, it is say the y-axis, it is say the z-axis, and let us suppose say it is say the positive x-axis. Now since it is the origin, it is the positive y-axis, and this perpendicular to the whiteboard will be the positive z-axis. Okay? Now this positive z-axis is represented by OZ. Got it? Fine. Now let us suppose that say the positive charge is uniformly distributed over the circular loop. Got it? Now we have to calculate the electric field due to this charged circular loop at this point. Okay? Now this point, it lies on the positive x-axis. Okay? Now, since we cannot use kq by r square. Why we cannot use kq by r square? Because kq by r square was the electric field, was the expression for the electric field at the observation point due to the point charge. Now in this case, since what do we have? We have a charged circular loop. Got it? And the positive charge is distributed over it. Now it is a clear case of charge distribution. So whenever we are having charge distribution and we ever calculate the electric field at the observation point due to the charge distribution, okay, it will be the linear charge distribution. The charge distribution can be of any type. Then remember one thing, we cannot use directly kq by r square, where q was the total charge on the system like that. We cannot do that. What do you have to do? We know that we are having the expression for the electric field due to the point charge. That is E is kq divided by r square. So since what we are going to consider? We are going to consider the length elements on the circular loop. Okay? Now those length elements, those charge length elements on the circular loop, they will serve as a point charge. Okay? Now I am starting up with the electric field at the observation point due to any one charge length element on the circular loop. Got it? Okay. Now let us suppose students that plus q, capital Q, be the total charge, plus q be the total charge which is uniformly distributed over the circular loop. Okay. Now I cannot consider this entire charge. Okay. What I have to do? I will just consider that if the entire charged ring, entire charged circular loop is divided into smallest possible but identical parts. Okay. Now since that smallest part is given the name charge length element, मतलब बेटा उसका कुछ लेंथ होगा, लेट अस सपोज से dl उसका लेंथ होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा, that will be very small, let us suppose say dq. Okay, now let us suppose say I am considering
the point say C. I am saying that dl be the length of the element and dq, say plus dq, be the charge on this element. Okay? Okay, so since the charge length element is considered at the point C, the charge on the length element is dq and its length is, say, dl. Now we can consider this charge length element as the point charge and we will mark its electric field at the observation point. Now since let us suppose say it is the straight line which joins the observation point with the charge length element. Got it, friends? Now let us suppose say that this distance is equal to r and this distance is equal to, say, x. Okay, that is, I am saying that this OA, let us call this observation point as A. Okay, now OA equals to x. Okay, let us suppose friends that small a be the radius of this circular loop. Okay, the figure is quite large. Okay, बहुत कुछ मार्क करना है यहाँ पे, तो साथ साथ कॉपी करते जाना. Now, since we are talking about the positive charge, okay, and we know that the charge on the length element which I have taken is, say, dq and it is small charge. So since there would be small electric field at the observation point A due to the small charge dq. Got it? Now as the charge is positive, so its electric field is radially outward. Got it? Now since I have marked the electric field at this point A due to this charge length element or simply the charge dq. बात समझ आ गई यहाँ? अब बेटा क्या करना है अब हमने बेटा इस लेंथ एलिमेंट जो कि हमारा पॉइंट C पर है, इस C पॉइंट के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर एक और लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना. ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रेंड्स, लेट अस सपोज से दैट इट इज, से द ऑब्जर्वेशन पॉइंट से D. ओके, और यहां पर जो लेंथ एलिमेंट है उसका मैं नाम दे देता हूं dl डैश. अब बेटा लेंथ एलिमेंट या लेंथ मैंने अलग रखा है, तो फ्रेंड्स चार्ज भी मुझे अलग बोलना पड़ेगा. लेट अस सपोज से dq डैश, suppose say plus dq dash be the charge at this point, say D. Okay, or the charge on the length element whose length is dl dash and is considered at the point D. This point D is located on the diametrically opposite end. बेटा डायमीटर होता है ना सर्कल का डायमीटर होता है, तो डायमीटर के जो दो एंड्स होते हैं उनको बोलते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स. गॉट इट फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि हमने यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर ही क्यों लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया. फ्रेंड्स हमने ऐसा सिमेट्री के लिए किया. ओके, वी आर गोइंग टू यूज सिमेट्री. ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, चार्ज प्लस dq डैश की वजह से भी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट से A, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट से A is also radially outward. Okay, now let us call this as, say, dE dash vector. इसको बोलते हैं बेटा dE dash vector. बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए. Let us suppose since this angle is theta. If this angle is theta, then by symmetry I can say that this angle is also theta. Now, if this angle is theta, then since this angle is also theta, बेटा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. Vertically opposite angles. Clear? Now, what we are going to do? We are going to take the rectangular components of these two marked electric field vectors. Okay? Rectangular components. याद होगा 11th में किया था. मैं दोबारा एक बार याद करा रहा हूं. Let us suppose it is, say, the vector A. Let us say any vector, say vector A, and this vector A makes an angle theta with the straight line. Then since the component or the effect or its part which will exist in this direction, it will be A cos theta. And perpendicular to this line, it will be A sin theta.
बात समझ आ गई बेटा? वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाए उसके साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आता है, और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसके साथ हमेशा साइन वाला कंपोनेंट आता है। 11th में किया था आपने। तो स्टूडेंट्स सेम अप्रोच को यूज कर रहे हैं, सेम अप्रोच को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। Now what we are doing? We are taking the rectangular components. We are taking the rectangular components. बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं आप, ठीक है? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं वेक्टर डीई के। बेटा वेक्टर डीई का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आप लेते हैं तो बेटा इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा इट विल बी डीई साइन थीटा। वेक्टर को देखिए, वेक्टर डीई दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोला था उसके साथ एंगल थीटा बनाया था। लेट अस सपोज से इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। गॉट इट? तो यहां पर आएगा डीई sin थीटा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डीई डैश। चलिए डीई डैश की बात बाद में करेंगे, पहले डीई के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स डीई sin थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। अब डीई डैश वेक्टर को देखिए, डीई डैश वेक्टर के आप कंपोनेंट्स लेंगे, डीई डैश sin थीटा। डीई डैश वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इसके साथ कंपोनेंट आएगा डीई डैश cos थीटा। और बेटा गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके साथ कंपोनेंट आएगा डीई डैश sin थीटा। गॉट इट? तो सिर्फ पहले सिर्फ इतना कॉपी कर लें आप। ओके जल्दी से कॉपी करिए, फिगर कॉपी करिए, पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर लूप। हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर लूप। इस हेडिंग के बाद में सिर्फ ये फिगर कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए, फिर मैं आगे डिक्टेट कर रहा हूं, डिक्टेट कर दूंगा, कंसीडरेशंस को उसको नोट कर लें आप। यस फ्रेंड्स, फिगर कॉपी कर लिया। अब बेटा फिगर कॉपी करने के बाद मैं कंसीडरेशन डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लें। ओके, कंसिडर द चार्ज्ड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल a placed or located in the YZ plane. The center of the circular loop coincides with the origin of the coordinate frame x y z। कैपिटल लेटर्स में यूज करना, कैपिटल लेटर x y z, फुल स्टॉप। Let plus q be the charge. Let plus q, capital Q, be the charge uniformly distributed over the circular ring let plus q be the charge uniformly distributed, I am saying uniformly distributed over the circular ring, full stop. Let capital A be the observation point
on the axis of the charged circular loop, comma, which coincides with the positive x-axis, comma, which coincides with the positive x-axis of the coordinate frame. Okay, let, बेटा ऐसे लिखें, let OA, ये कैपिटल A, OA equals to say small x, OA equals to small x, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखें. नेक्स्ट लाइन का मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें. कंसिडर द चार्ज लेंथ एलिमेंट having the length dl and charge plus dq located at the point C on the circular loop. Full stop. Let vector DE, beta ये वाला DE, small d capital E vector, let vector DE be the electric field at the point A due to the positive charge plus dq on the charge length element. इसके बाद यहां पर now in magnitude this DE is written as since K dq divided by CA square. Let us suppose say that the CA is equals to small r. बेटा CA का वैल्यू यहां पे लगाए, CA का वैल्यू यहां पे लगाए, आपको मिलेगा DE is written as say K into say DQ divided by R square. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें. कंसिडर द चार्ज लेंथ एलिमेंट having the charge plus dq dash and length dl dash at the point D located on the diametrically opposite end, located at the diametrically opposite end of the point C, on the circular loop. Full stop. Let vector DE dash be the electric field at the point A due to the charge plus dq dash on the charge length element, नेक्स्ट लाइन में लिखे बेटा. इन मैग्नीट्यूड this DE dash is written as say K into say DQ dash divided by DA square. Now by symmetry we can say that this DA is equals to small r. बेटा DA का वैल्यू यहां पे लगाएं. So we can say it is written as say DE dash is equals to K DQ dash divided by R square. K DQ dash divided by R square. Let us call this equation as the equation number second. बेटा इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड लिखें. डन हो गया. इसके बाद लिखें टेकिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स
taking the rectangular components of vector DE and vector DE dash, vector DE and vector DE dash, full stop। बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखिए DE, बेटा थोड़ी गलती हो गई है फिगर में थोड़ी गलती है, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, एक बार मार्क कर लें उसको आप। बेटा यहां पर ये DE cos थीटा है, सॉरी DE cos थीटा है, ओके मैंने गलती से यहां पे sin थीटा लिखा हुआ था। Yes friends, taking the rectangular components of vector DE and vector DE dash along positive x-axis and perpendicular to it, full stop डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखिए DE cos theta and DE dash cos theta, DE cos theta and DE dash cos theta, DE cos theta and DE dash cos theta are along the positive x-axis, and DE dash sin theta, या फिर एक काम करें फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखें DE dash sin theta is perpendicular to the x-axis and vertically upward, comma DE sin theta is perpendicular to the positive x-axis and vertically downward. Okay, done, clear? Now नेक्स्ट लाइन में देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, if suppose say this DL is equals to DL dash, अगर बेटा DL और DL dash दोनों एक दूसरे इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब हो जाएगा DQ will be equals to DQ dash, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज आएगा। और फ्रेंड्स क्योंकि DQ और DQ dash इक्वल हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से we can say that this DE it will be equals to DE dash। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ DE एंड DE dash ये भी सेम हो जाएगा। अब जब ये सेम हो जाएंगे तो फ्रेंड्स I can say that this DE sin theta it is also equals to DE dash sin theta। यहां तक बात समझ आ गई? कॉपी कर ले। डन। अब नेक्स्ट लाइन में लिखे बेटा, if the charge length elements taken on the diametrically opposite ends on the circular loop have same length, then the magnitudes of the components of the electric fields due to them along the perpendicular to the positive x-axis will have the same magnitude and opposite direction। मतलब बेटा
अगर बेटा लेंथ एलिमेंट्स आपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स जैसे सी और डी पर कंसीडर किए और इनका लेंथ अगर सेम है तो बेटा इन लेंथ एलिमेंट्स पे जो चार्जेस हैं उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएंगे और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि बेटा डीई डैश साइन थीटा और डीई साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, तो पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखें। नेक्स्ट लाइन का मतलब नेक्स्ट लाइन, सो डीई साइन थीटा एंड डीई डैश साइन थीटा गेट कैंसल्ड विद ईच अदर, गेट कैंसल्ड विद ईच अदर। फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए पहले। अब स्टूडेंट्स अगर लेंथ एलिमेंट्स आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे कहीं पर भी कंसीडर करते हैं पूरे सर्कुलर लूप पर, तो ये सेम स्टोरी सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी। सभी एलिमेंट्स पर चार्जेस इक्वल होंगे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, उन मार्क्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आएंगे उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब इस बात को लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द सेम विल होल्ड, द सेम विल होल्ड फॉर all the charge length elements taken on the diametrically opposite ends of the circular loop, of the circular loop, that is the components of the electric field in a direction perpendicular, in a direction perpendicular to the positive x-axis will get cancelled in pairs. Full stop. अब ध्यान से देखिए बेटा, बेटा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के, जितने भी साइन वाले कंपोनेंट्स आएंगे, साइन वाले कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाले हैं, तो सारे के सारे साइन वाले कंपोनेंट्स पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे हमारे पास कॉस वाले कंपोनेंट्स। अब ये कॉस वाले कंपोनेंट्स सारे के सारे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब बेटा जितने भी कंपोनेंट्स कॉस वाले कंपोनेंट्स होंगे सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए फुल स्टॉप करके, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, the net electric field at the point A is the algebraic sum of all the components of the electric fields at the point A along positive x-axis, along positive x-axis। ठीक है, तो बेटा एक बारी मैं समराइज कर रहा हूं, ये जितना मैंने आपको लिखवाया है क्या है ये पूरा समराइज कर रहा हूं। देखिए दोबारा से देखिए, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर लूप के ऊपर ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा के क्यू बाई आर स्क्वायर से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को लेंथ एलिमेंट्स कंसिडर करने होंगे। लेंथ एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स होते हैं जिसमें आप पूरे सर्कुलर लूप को डिवाइड कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए आपने डिवाइड कर लिया स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स में, तो बेटा उन स्मॉलेस्ट पार्ट में से कोई एक पार्ट उसको बोला जाता है चार्ज लेंथ एलिमेंट। तो एक चार्ज लेंथ एलिमेंट हमने पॉइंट सी पर कंसिडर किया, इसका लेंथ dl है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इस चार्ज लेंथ एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए इज वेक्टर dE, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है।
ओके, सी पॉइंट के ऑपोजिट एक और पेयर्स में लेने हैं चार्ज लेंथ एलिमेंट। सी पॉइंट के ऑपोजिट हमने डी पॉइंट पर, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड बोलते हैं इसको, डी पॉइंट पर एक और चार्ज लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए वेक्टर डीई डैश। बात समझ आ गई? अब बेटा वेक्टर डीई का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना है, वेक्टर डीई डैश के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मार्क्ड हैं, दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। डीई का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा डीई cos थीटा, और डीई डैश का डीई डैश cos थीटा। और वेक्टर डीई का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी डीई sin थीटा। वेक्टर डीई डैश का एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी डीई डैश sin थीटा। क्लियर? डीई के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी डैश के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बेटा डी क्यू और डी क्यू डैश किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा डीएल और डीएल डैश दोनों एक दूसरे इक्वल होते हैं तो इसकी वजह से डी क्यू और डी क्यू डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आ गई? तो सर चार्जेस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से बेटा इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, डीई डैश sin थीटा और डीई sin थीटा, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्टूडेंट्स इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स पूरे के पूरे सर्कुलर लूप पर आपने जितने भी लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर किए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे, जैसे डीई वेक्टर था और डीई डैश वेक्टर था। जब आप उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो कॉस वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो तो आएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो साइन वाले कंपोनेंट्स होंगे वो आएंगे परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई? क्लियर? अब क्योंकि सारे लेंथ एलिमेंट्स का लेंथ सेम है तो उनके ऊपर चार्ज सेम, चार्ज सेम होने की वजह से उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो सेम, जिसकी वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आए थे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से पेयर्स में ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। समझ आ गई बात? तो स्विच एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो तो पेयर से कैंसिल आउट हो गए। अब बचे हमारे पास सिर्फ वो वाले कंपोनेंट्स जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थे। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग निकलेंगे, सबका डायरेक्शन सेम आएगा। तो स्विच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द अलजेब्रिक सम, क्योंकि स्विच जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सिंपली ऐड करके। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गॉट इट? इस तरीके से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई ये बात? ठीक है, ओके। चलिए अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं। और बेटा ये जो स्टोरी लिखवाई है मैंने आपको कि ये कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो कैसे पेयर्स में कैंसिल आउट हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसको लर्न करके और इसी सीक्वेंस में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप, लेट वेक्टर ई, ऐसे लिखें, लेट वेक्टर ई बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट वेक्टर ई बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, at the point A on the axis of the circular loop, on the axis of the circular loop. ओके, अब एक काम करते हैं, पहले डाटा नोट कर लेते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ओ ए एक्स के इक्वल था, ओ सी आर के इक्वल है, और सॉरी ओ सी स्मॉल ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप के इक्वल है, स्मॉल ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, और सी ए कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल था सी ओ ए, राइट एंगल ट्राइंगल है सी ओ ए, सी ओ ए। बात समझ आ गई? ओके।
Now students, this electric field in magnitude, ऐसे लिखें in magnitude, thus E it will be equal to the algebraic sum of all the components along positive x-axis, dE cos theta. बेटा dE का वैल्यू निकाला था हमने k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये वाला वैल्यू उठा के यहां पे डालते हैं। So this capital E is written as the algebraic sum of say k multiplied with dq divided by r square multiplied with cos theta। यहां तक बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? ओके, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखें एज द चार्ज is uniformly distributed over the circular loop, so beta charge upon length dq divided by dl, so beta charge per unit length dq divided by dl it will be equals to charge per unit length, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए काम करते हैं, इसको स्मॉल क्यू से डिनोट किया था हमने, इसको स्मॉल क्यू कर लेते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, करंट लेंथ एलिमेंट पर, it will be equals to the total charge of the circular loop divided by its total length। ठीक है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो q divided by 2 pi a, it will be the linear charge density of the circular loop, and the q divided by dl, it will be the linear charge density of the charge length element। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी ऑन द एंटायर लूप, हर जगह सेम रहेगी, ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम रहेगी। क्लियर? ओके, एंड इट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, यहां से आप dq को कैपिटल Q की टर्म्स में निकालेंगे। ऑन सॉल्विंग इट आई कैन से that this dq is written as q divided by 2 pi a multiplied with dl। dq is written as q divided by 2 pi a multiplied with dl। अब बेटा dq का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें आप। अब ये dq का वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे आप। So I can say that this E in magnitude is written as summation of k, dq का वैल्यू डालें q डिवाइडेड बाय ये वाला r स्क्वायर पहले लिख लें, इंटू 2 पाई a लिख लें, इंटू dl लिख लें। बात समझ आ गई? और इंटू था cos ऑफ थीटा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन द राइट एंगल ट्राइंगल COA। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल COA, राइट एंगल ट्राइंगल COA के अंदर क्या था? C यहां पे था, O यहां पे था और A यहां पे था और ये वाला एंगल थीटा था। ये वाली लेंथ स्मॉल a थी, ये x था और ये r था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर हम r का वैल्यू x की टर्म से निकालते हैं। We can say this r square is written as say x square plus say a square। Okay, मतलब so this r is written as x square plus say a square raised to power 1/2। 1/2 समझ आ गई बात? ओके, r स्क्वायर का वैल्यू यहां पे लगा लेंगे। अब cos थीटा निकालते हैं। Also you can say that this cos of theta is equals to base over hypotenuse। The base is x and the hypotenuse is r। Base is x, hypotenuse is r। r का वैल्यू यहाँ पे लगाएं। So this cos of theta is written as x divided by x square plus a square raised to the power 1/2। ये cos theta का वैल्यू आ जाएगा। तो ये cos theta का वैल्यू यहाँ से और ये r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से। ओके, ये दोनों वैल्यूज उठाइए, यहां पे लगाइए। Now we can say that
कॉपी कर लिया था, जल्दी से कॉपी कर ले। नाउ वी कैन से दैट ये कॉपी हो चुका है, ठीक है, इसको दोबारा कॉपी मत करना। नाउ दिस E is written as summation of say k divided by say r square। चलिए r square हटा के वैल्यू डाल देते हैं पहले। r square की जगह पे x square plus a square raised to the power nothing, क्योंकि स्क्वायर था। अगर लिखना चाहते हैं तो पार्ट डालें 1/2, r का स्क्वायर है, होल 2 लगा लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद q डिवाइडेड बाय 2 pi a। ओके, इतना काम क्लियर हो गया। मल्टीप्लाइड विद cos थीटा का वैल्यू डालें, cos थीटा इज, पहले dl रहता है, dl को लिख लें, dl cos थीटा का वैल्यू डालें, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 1/2। ओके, अब बेटा इसको रिड्यूस कर लें आप। Now this capital E is written as summation of k multiplied with q multiplied with x multiplied with dl divided by say 2 pi a, 2 pi a को पहले लिख लें, multiplied with x square plus a square raised to the power 3/2। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 यहाँ पे है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा 3/2। समझ आ गई ये बात? अब देखिए k कांस्टेंट हो गया, q कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट था, 2 pi a कांस्टेंट है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले जाते हैं। नाउ वी कैन फर्दर से दैट इट कैन बी रिटन एज से k q मल्टीप्लाइड विद x डिवाइडेड बाय 2 pi a multiplied with x square plus a square raised to the power 3/2। ओके, ये सब कॉमन आ जाएगा, ये पूरा कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन निकलने पर समेशन ऑफ dl बचेगा। जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें, फटाफट कॉपी करिए। जल्दी से कॉपी कर लें। डन। नाउ we can say that this capital E, we can say that this capital E can be written as say k capital Q x divided by 2 pi a multiplied with x square plus a square raised to the power 3/2 summation of dl। बेटा सारे dls को उठा करके ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा सर्कमफेरेंस। बात समझ आ गई? क्या मिलेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। गॉट इट? लिखा हुआ था इनटू समेशन ऑफ dl, तो सिंस समेशन ऑफ dl आपको देगा 2 pi a, तो समेशन ऑफ dl की जगह पे वहां पे डाल दें इसको, तो आपको e मिलेगा, ये dl लिखा हुआ है, स्मॉल dl, k कैपिटल Q मल्टीप्लाइड विद x डिवाइडेड बाय 2 pi a पहले से था, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 आ गया। समेशन ऑफ dl का वैल्यू लगा ले, इट इज 2 pi a, 2 pi a कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 2 pi a कैंसिल आउट होने पर E is written as say k capital Q multiplied with x divided by x square plus a square raised to the power 3/2। यहां तक बात समझ आ गई? कॉपी कर लिया? जल्दी से कॉपी कर लें इसको। जल्दी से कॉपी करें। ओके, नाउ
अब बेटा k का वैल्यू लगाते हैं, k का वैल्यू लगाते हैं, k वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। सो दस E is written as 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट multiplied with q multiplied with x divided by x square plus a square raised to the power 3/2। ये बात समझ आ गई? ये चार्ज सर्कुलर लूप है। ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया ये? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, और सिंपली द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर। ओके, गॉट इट? एक इंपॉर्टेंट केस, नेक्स्ट लाइन में हैश डाल के लिख लें। केसेस, केसेस लिखिए। पहला केस, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट lies at the center of the circular loop, center of the circular loop। if the observation point lies at the center of the circular loop, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? this x is reduced to 0, तो बेटा x कितना हो जाएगा? 0। ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट a को मूव कराइए टुवर्ड्स द ओरिजिन, आप देखेंगे कि x रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 0। बात समझ आ गई? कॉपी हो गया? जल्दी से कॉपी कर लें। डन? मैं मिटा रहा हूं। जल्दी से कॉपी कर लें। Done? Now, the case second. Case second. बेटा इमेजिन करें कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बड़ी दूर लाई कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी लार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, द डिस्टेंस of the observation point is very large from the center of the circular loop। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि this x is very very larger than a। बेटा अगर x is very very larger than a, तो इसका मतलब हो जाएगा x square would be very very larger than a square। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि आप a square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। so a square can be neglected। बेटा नेग्लेक्ट करना किससे है? याद रखें, नेग्लेक्ट इस वाले एक्सप्रेशन से करना था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, q था, x था, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर था, प्लस a स्क्वायर था, रेज़ टू द पावर 3/2 था। बात समझ आ गई? ओके, तो यहां पर आप x स्क्वायर बहुत ज्यादा है, a स्क्वायर काफी कम है, तो a स्क्वायर को ड्रॉप कर दें आप। तो a स्क्वायर को जब आप ड्रॉप करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड विद x। समझ आ गई बात? सिर्फ a स्क्वायर को ड्रॉप किया आपने, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो स्वयं समय क्या मिलेगा? वी गेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू से कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इनटू से x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3। x से x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। सो
This electric field is written as 1 upon say 4 pi epsilon naught into capital Q divided by x square. बात समझ आ गई बेटा? अब एक एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, याद आ रहा है ना पॉइंट चार्ज का? तो स्वेल्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर बड़ी दूर लाई करता है तो चार्ज सर्कुलर लूप एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में मैंने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन दी थी। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं बेटा? वो वाली चार्ज बॉडीज जिनका साइज बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। बात समझ आ गई? सो क्या होगा इस वाले केस में? in this case the charged circular loop behaves like the point charge. Got it? हो गया? कॉपी हो गया? जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से कॉपी कर लें। इसके बाद लास्ट केस। अब देखिए, इमेजिन करिए स्वेल्स, आप एक कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग को इमेजिन करिए। एक स्प्रिंग जिसको हमने कॉम्प्रेस कर दिया, फिजिकली सारे टर्म्स एक दूसरे कांटेक्ट में थे। गॉट इट स्वेल्स? ओके, इसको कहते हैं सर्कुलर कॉइल। क्या कहते हैं इसको? सर्कुलर कॉइल। आपको नेकेड आई से देखने पे लगेगा फिजिकल टर्म्स एक दूसरे कांटेक्ट में हैं, लेकिन एक्चुअली वो इंसुलेटेड होते हैं। क्लियर? तो बेटा सर्कुलर लूप की जगह, सिर्फ एक लूप की जगह अगर आप एक कॉइल रखें, सर्कुलर कॉइल रखें, तो उसके अंदर आइडेंटिकल टर्न्स होंगे। अब हर टर्न अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आइडेंटिकल टर्न्स हैं तो हर टर्न का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम मिलेगा। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें केस थर्ड। कॉपी मिटा रहा हूं। केस थर्ड, केस थर्ड, if the circular loop is replaced by the circular coil having n turns, having n turns, then the net electric field at the observation point, it will be 1 upon say 4 pi epsilon naught multiplied with capital N, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दे एक्सप्रेशन, q multiplied with x divided by x square plus a square raised to the power 3/2। ठीक है? ओके, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E, स्वेल्स केसेस से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने लिखा था वहां पर डायरेक्शन ऐड कर लें। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, क्लियर? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा यानी स्टेटमेंट वहां पर भी ऐड कर ले, केसेस से जस्ट पहले लिख दें इसको, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला था। गॉट इट? जल्दी करिए। ओके, कंप्लीट हो गया? जल्दी कॉपी करिए। Yes, sir, done. Okay. Now, students, it is all for today in this video. Okay. और नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करना है, और नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ गई? ओके, ओके।